Hello, good morning students. We are left with some of the functions of meristematic tissue. So first of all, meristematic tissue is the parent tissue from which all tissues develops. Means it is having the power of division. तो जब ये mature हो जाते हैं तो ये अपनी power of division को lost कर देते हैं, then they become permanent. तो इसी meristematic tissue से all other tissues are developed. That's why it's called as parent tissue. Secondly, these tissues take part in growth because they help in primary as well as secondary growth of the plant. So they are the growing tissue, growth tissue of the plant which help in forming a new cell. So third one you can leave, and fourth is whenever the plant cell get rupturing or it get injury, so the meristematic tissue divide and redivide at that place to add up new cells and heal up the ruptured or injured portion of the plant. So इसका मतलब जो healing का काम कर रहे हैं, so they help in healing of the plant cells. That is also done by meristematic tissues. So जब plant tissue जो है shoot है, it bends by the wind, और तो ये क्या करती है कि wear and tear हो जाती है, तो उसको भी support क्या है, intercalary मेरिस्टेम दे रहा है. It helps in the upright growth by the help of intercalary meristem. So these are some of the functions of meristematic tissue. So today we will continue with the permanent tissue. So yesterday we discussed regarding meristematic tissue, and today we'll start with the permanent tissue. Permanent tissue is that tissue which has lost the power of division. Means they got mature and they lost the power of division, and then they acquire permanent shape, permanent size and permanent function to perform. That's why that is called as cell differentiation. Means when the cell get differentiated, means it is having a particular shape, permanent shape ले लेता है, permanent size acquire कर लेता है, और एक particular function adopt कर लेता है कि it has to do this function. तो वो उस टाइम पे ये अपनी जो division की power को भी lost कर देता है, then it become permanent tissue. तो permanent tissue is of major two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is that type of tissue which is made up of same types of cells. Structurally and functionally, they are made up of only single type of cells, same and single type of cells. Then it is called as simple permanent tissue. And major role of the simple permanent tissue is protective and supportive. It helps to give support to the plant as well as give protection to the plant against stress and strains of the environment. Whereas the complex permanent tissue, its major function is conductive, means it helps in transportation of food, water and minerals to upward as well as downward parts of the plant, and it is composed of more than one type of cells. That's why it is called as complex. Means in simple only one type of cells are there and they are structurally and functionally similar, but in complex permanent tissue they are made up of, like xylem. Xylem is made up of 4 different types of cells which we'll discuss later on, and again phloem is also made up of 4 different types of cells, and the nature as well as function of these all the cells are different. So that's why it is composed of more than one type of cells having different function and structure. That's why it is called as complex permanent tissue. So first of all we will discuss regarding simple permanent tissue. It is of 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. First of all we will discuss regarding parenchyma. So what is the nature of parenchymatous tissue? तो parenchyma जो है, its meaning is para means beside and chyma means infilling, means beside it. It is the main filling packing part of the packing tissue है. It form the bulk of plant body. इसका क्या मतलब? bulk का मतलब तो जितने भी all the organs or the parts of the cell, it is filled with the parenchymatous tissue. तो ये major tissue है जो प्लांट के हर पार्ट को फिल करता है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स जो भी है, दे आर मेड अप ऑफ parenchymatous टिश्यू. इट्स सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक. आइसोडायमेट्रिक का मेन मतलब है दे आर नियरली ऑफ इक्वल डायमीटर. दे आर हैविंग इक्वल एक्सपेंडिचर टू, मीन्स दे आर इक्वली एक्सपेंडेड टू ऑल द साइड्स, मीन्स दे आर ऑफ इक्वल साइज, राइट. एंड दे मे बी ओवल, elongated और polygonal. जैसे यहाँ पे थोड़े राउंडेड शेप हैं,
and they are having large intercellular spaces. They are having thin सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल है, क्योंकि अभी ये पहले टिश्यू है ना बने आफ्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो दे आर हैविंग थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हैविंग prominent vacuole in the center, so that's why the nucleus is shifted towards the side, and it is having living protoplasm and it is having large intercellular spaces in between. तो cells के बीच में काफी सारी खाली spaces होती है intercellular loosely, so that's why because it is having large intercellular spaces it means it is loosely packed tissue. ये loosely packed है. अब ये तो होगी इसकी नेचर. एंड व्हाट इज देयर इट अकर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो ये जो है इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एज वेल एज फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स. इवन इन द मेसोफिल सेल्स जो जिनमें क्लोरोफिल होती है और जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ parenchymatous tissue. So regarding the functions of parenchyma, the first function is, as I told you, it is a packing tissue. It packs, it serves as a packing tissue, so it fills spaces between other tissues. जितने भी बाकी के टिश्यूज है उसके बीच में जो खाली स्पेसेस होते हैं, they all are filled by parenchyma, so that's why it is acting as packing tissue. ये बीच बीच में उसको फिल कर देता है, right? And again कि ये जो क्या है, they are turgid, means they due to their turgidity, ये पानी इनमें फिल रहता है, टर्जिड रहते हैं, तो इसलिए दे आर प्राइमरी सपोर्टिंग सेल्स द स्टेम्स ऑफ जो हर्बेशियस होते हैं. हर्बेशियस कौन से प्लांट्स होते हैं जो अभी वुडी नहीं हुए, डेलिकेट स्टेम्स हैं, तो उनको ये इंटैक्ट रखता है, सपोर्ट करता है. मेन फंक्शन क्या है पैरेंकाइमा का? स्टोरेज का काम. तो जो फूड बना है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या कई बार अमाइलो प्रोटीन्स वगैरह, तो दे गेट फिल्ड इन पैरेंकाइमेटस टिश्यू. जैसे कि पोटैटो में जो स्टार्च होती है, तो वो कहाँ है? पैरेंकाइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूब, वो वहाँ पे पैरेंकाइमेटस टिश्यू में फिल्ड होती है. देन ट्रांसपोर्टेशन में भी इट्स प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, राइट. देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि जब मैंने बताया ना, जैसे मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में भी पैरेंकाइमा के ही बने होते हैं, तो व्हेन द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द पैरेंकाइमा, एंड दैट केस इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, एंड एट दैट टाइम इट प्लेज द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव. जैसे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स. तो हाइड्रोफाइट्स में जो पानी में रहते हैं उनमें पैरेंकाइमा क्या करता है? इट प्रोड्यूस ए लार्ज एयर कैविटीज होते हैं, जिसके कारण दोज प्लांट्स आर एबल टू फ्लोट इन वाटर, जिसको बायंसी देते हैं, द टेंडेंसी टू फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. तो जब ये हाइड्रोफाइट्स में पैरेंकाइमा प्रेजेंट है तो वो उसको बायंसी दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा. और जब जीरोफाइट्स होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं प्लांट्स, एरिड प्लांट्स मीन्स जो डेजर्ट्स में उगते हैं, तो जीरोफाइट्स में क्या करते हैं, जैसे सकुलेंट्स है, ये क्या करता है? वाटर को स्टोर करने, क्योंकि जीरोफाइट्स को पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो अब वो अपने सेल्स के अंदर काफी दिनों तक पानी स्टोर करके रखते हैं, सो दैट दे कैन यूज इट लेटर ऑन. तो वो उस टाइम पे ये क्या करे? दे एक्ट एज वाटर स्टोरेज टिश्यू इन द केस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ पैरेंकाइमेटस टिश्यू. सेकेंड टिश्यू इज कॉलेनकाइमा. जस्ट लाइक पैरेंकाइमा, इसकी बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पैरेंकाइमा की तरह ही होती है कॉलेनकाइमा की. इट इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू एंड ऑल द फीचर्स ऑफ पैरेंकाइमा इट इज एग्जिबिटिंग. बस इसका ये फर्क है कि इट इज हैविंग, जैसे उसकी वॉल्स क्या थी? थिन थी. दे आर हैविंग थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट जो कॉलेनकाइमा की वॉल्स हैं वो कॉर्नर से थिक होती हैं. दे आर हैविंग थिक वॉल्स, दे आर हैविंग, क्योंकि उनके मार्जिन पे सेलुलोजिक थिकनिंग होती. सेलुलोज जो है उनके मार्जिन पे ऐसे थिक हो जाता, डिपोजिट होता है एट द कॉर्नर्स पे सेलुलोज होने से क्या है? देयर वॉल्स बिकम थिकेंड एट द कॉर्नर्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज. तो इस एक्स्ट्रा सेलुलोज की डिपोजिशन के कारण इन सेल्स के आपस में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो भी ना के बराबर होते, मीन्स सो वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा. Rest of the structure is same कि central portion is occupied by the vacuole, nucleus is aside, abundant cytoplasm, cell wall made up of cellulose, but extracellulose is deposited at the corners of the cell to reduce intercellular space, right? So this is regarding the structure of collenchyma. अब ये पाया कहाँ पे जाता है?
बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो हिस्सा है, जैसे कॉर्टेक्स, पिट्यूल आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, देन स्टेम एंड पिट्यूल, उन हिस्सों में क्या भरा होता है? कॉलन काइमा। जैसे पैरेन्काइमा का हमने बोला है इट इज अ पैकिंग टिश्यू, मेजरली इट इज पैकिंग टिश्यू। कॉलन काइमा इज मैकेनिकल टिश्यू, मीन्स इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट की जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो एटमोस्फेयर के है उसको बेयर करने के लिए इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब तेज आंधी तूफान आते हैं तो उसकी स्टेम टूट ना जाए, तो इट मेक इट इलास्टिक सो दैट इट कैन बेयर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ एयर प्रेशर। तो ये क्या देती है उसको? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि ये झूलती रहती है ब्रांचेस बट ब्रेक डाउन नहीं होती विद फ्लेक्सिबिलिटी, तो जिससे कि वो टूटती नहीं है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कौन देता है? कॉलन काइमा। सो दिस इज द मेजर रोल प्लेड बाय कॉलन काइमा इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। सो जब कॉलन काइमा में भी कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, देन दे ऑल्सो हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड स्टार्च। तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। दिस इज द रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कॉलन काइमा। थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। जैसे पैरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा बोथ आर लिविंग टिश्यू, दे आर हैविंग लिविंग प्रोटोप्लाज्म, बट स्क्लेरेन्काइमा दे आर डेड सेल्स, दे डोंट हैव लिविंग cytoplasm and nucleus, protoplasm, that's why they are having vacuole, right? And this is collenchyma. You can see from this diagram, देखो, they don't have their nucleus inside, they are having pits and lignified walls but no living protoplasm, so they are dead tissue. So they are devoid of protoplasm and cell walls of sclerenchyma greatly thickened. वहां पे जो collenchyma में corners पे thickness थी, they were because of the deposition of cellulose, but here they are deposited with the lignin. Due to deposition of lignin, their cell walls are very thick. And इसके अंदर जो cavity या खाली space है lumen, और उसके कारण जैसे जैसे थिकनिंग ज्यादा होती जाती है तो इसका जो खाली स्पेस अंदर से वो कम होता जाता है, क्योंकि उसमें भी लिग्निन भरती जाती है। तो उसमें ल्यूमेन जो है नियरली या तो नैरो होता है या बिल्कुल एब्सेंट होता है। ल्यूमेन मीन्स खाली स्पेस इनसाइड द सेल। सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर क्लोजली पैक्ड, मीन्स दे ऑल्सो डोंट हैव एनी intercellular space in between. So this is regarding the structure of sclerenchyma. जो स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं वो दो तरह के हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। आपने कभी स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स देखे? कभी देखे? हैव यू एवर सीन? यस यू हैव, बट आपको रिमेम्बर नहीं है। जूट देखते हो, कॉयर देखते हो, जैसे आपके डोर मैट्रेस बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, जूट, कॉयर, दीज ऑल आर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। और जब आप अखरोट का छिलका देखते हो, बादाम का छिलका देखते हो, कई बार अमरूद में आपको या पेयर में आपको दाने लाइक ग्रेन्यूल्स फील होते हैं, देयर ऑल्सो द स्क्लेरेट्स, वो भी स्क्लेरेन्काइमा की ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब वो दो उनकी टाइप्स हैं, वन आर फाइबर्स एंड अदर आर स्क्लेरेट्स। ग्रिटी मटेरियल जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज स्क्लेरेट्स, और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज फाइबर्स। सो फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। ऐसे लिग्निफाइड सेल्स, इलॉन्गेटेड सेल्स filled with lignin। और जो स्क्लेरेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रिट सेल्स और स्टोन सेल्स। दे मे बी ऑफ इरेगुलर शेप्स, कोई भी शेप के हो सकते हैं, लाइक दिस। तो दे आर द ग्रिटी मटेरियल प्रेजेंट इन गावा, इन पेयर जब आप खाते हो तो आपको दाने से कुछ फील होते हैं, या कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे कुछ नट्स हैं उनके जो छिलके हैं, दे आर ऑल्सो नट कोटिंग्स, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेट। तो जो ग्रिटी पार्ट जो है राइपेंड फ्रूट्स का, वो हार्डन हो जाता है। नट शेल्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ दीज स्क्लेरेट्स एज वेल एज फाइबर्स। तो वो क्या है? स्क्लेरेन्काइमेटस। जैसे आप कॉयर, जो आप नारियल का जो बाहर का छिलका उतारते हो, दैट इज द ऑल्सो अ फाइबर ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो अब फंक्शन क्या हो गया फिर स्क्लेरेन्काइमा का? इट इज ऑल्सो मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करता है? सेल को रिजिड बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एज वेल एज इलास्टिसिटी देता है। मीन्स इट इज ऑल्सो मैकेनिकल इन नेचर, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और इवन ये लीव्स में होता है तो पत्ते जो है हवा के प्रेशर से फटते नहीं हैं,
वेयर अप नहीं होते बिकॉज they are supported by sclerenchymatous tissue. So this is regarding the simple permanent tissue. So in next video we'll discuss regarding complex permanent tissue. Thank you beta.